हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग वर्सेस 3D प्रिंटिंग वर्सेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली होता क्या है कि ये तीनों जो टर्म्स है ये सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की अगर बात करते हैं उसको हम दो वर्ड में स्प्लिट कर सकते हैं। वन इज रैपिड एंड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड रैपिड मीन्स व्हाट? फास्ट, राइट? And what is prototyping? Prototype, it is nothing but a concept model, or you can consider it as early stage product, or it's a scaled model which is used for better visualization, for ergonomic purpose, how your final product will look, or it can be used for the assessment of functional परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस, राइट? बेसिकली प्रोटोटाइप क्यों प्रोड्यूस करते हैं? देखो, कोई भी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेट्स से कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, सो इट स्टार्ट्स विथ कस्टमर नीड्स, देन from customer needs some concepts are produced, and to make that concept real, prototypes are produced, राइट? टू जस्ट चेक कि फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कैसे दिखेगा, उसके एर्गोनॉमिक्स कुछ चेंजेस करने हैं क्या, उसका फंक्शनल परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है, तो इसके लिए प्रोटोटाइप्स यूज होते हैं। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स यूजिंग यू कैन प्रोड्यूस अ प्रोटोटाइप। अब इसमें जो है देयर आर टू मेथड: material removal rapid prototyping process and material addition rapid prototyping process. For example, in an organization there is design department, manufacturing, quality, then you are having a packaging department, etc, etc, right? Suppose I have to consider the CNC. Whenever we are talking of CNC, that is computer numerically controlled machine, आपको क्या लगता है कि एक CNC जो है जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होनी चाहिए? Let's say there is a small CNC which is in design department. So let's say I'm calling it as a dedicated CNC. So जो भी नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए कुछ डेडिकेटेड सीएनसीज होती है। दीज आर स्मॉलर बिकॉज जो भी प्रोटोटाइप होंगे वो क्या होंगे? दो आर स्केल्ड ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो एक छोटी सी सीएनसी मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट में रख दी। अभी सीएनसी कैसे वर्क करता है? It is based on what? Subtractive manufacturing. Subtractive means what? You are removing the material from raw material to get a final object. So it's a subtractive manufacturing. So I am having a dedicated CNC. मेरे पास क्या है? Dedicated CNC which I am using to produce a prototype at faster rate. So that is rapid prototyping. तो एक बात हो गई material removal rapid prototyping process. सेकेंड बात करेंगे मटेरियल एडिशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। लेट्स से आई एम मेकिंग ऑब्जेक्ट बाय डिपॉजिटिंग अ लेयर बाय लेयर मटेरियल। सो basically rapid prototyping, it is one of many applications under 3D printing or additive manufacturing. ओके, अभी जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोटोटाइप हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग से प्रोड्यूस करने वाले हैं, आर वी गोइंग टू यूज एज अवर फाइनल प्रोडक्ट? नो। सो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक से प्रोड्यूस किए जाते हैं, वी आर नॉट यूजिंग इट एज फॉर सर्विस एप्लीकेशन। उसका एंड हम एंड रिजल्ट के लिए यूज नहीं करते। It is used only to produce a prototype. So hope with this it is clear that what are rapid prototyping processes. So basically rapid prototyping processes, it is one of the many application under 3D printing or additive manufacturing. अभी बात करेंगे 3D printing और additive manufacturing की। Basically ये दोनों भी words, these are synonyms. That means there is not major difference unless and until how this process work is considered. So both the processes, that is 3D printing and additive manufacturing, both are based on same principle, that they produce a product layered by layer or drop by drop. That means that is layered based manufacturing process. It's what? 3D printing and additive manufacturing, it is what? It is a layered based manufacturing process. तो डिफरेंस है क्या इन दोनों में?
तो अगर आप मीडिया में बात करें या फिर जनरल पब्लिक में आप बात करते हो, जो भी पब्लिक है, ऑडियंस है, वो कहेंगे इट्स अ 3D प्रिंटिंग। अगर आप प्रोफेशनली जाते हो, आप इंडस्ट्री में जाते हो, यू विल यूज सम प्रिसाइज वर्ड, सो यू विल यूज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। बट बेसिकली बोथ, जो भी 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो वर्किंग है, इट इज बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल, दैट इट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर। देखो 3D प्रिंटिंग ये जो वर्ड है, you can I don't know whether you have seen 3D printer or not, आप सर्च भी कर सकते हो 3D printer। so there are numerous inexpensive, जो आप डेस्कटॉप अपने डेस्क पे भी रख सकते हो, इतने छोटे से 3D प्रिंटर भी है। तो बेसिकली ये 3D प्रिंटिंग वहां से बढ़ता गया कि इनएक्सपेंसिव 3D प्रिंटर मार्केट में आने लगे। इसके लिए जो भी मीडिया है या जनरल पब्लिक है, वो 3D प्रिंटिंग ये वर्ड यूज करने लगे। लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो, प्रिसाइजली आपको बात करें, कोई प्रोफेशनल से आप बात करते हो, सो डेफिनेटली ही विल कॉल इट एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ड ऑन it produces a object layered by layer. So basically 3D printing or additive manufacturing both uses a 3D CAD model, 3D CAD data to produce a object layered by layer. ओके अभी बेसिकली डिफरेंस है कहाँ पे? एक तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि जनरल पब्लिक 3D प्रिंटिंग बोलेगी, और अगर आप प्रोफेशनल से बात करेंगे वो क्या बोलेगा, इट्स अ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड है, 3D प्रिंटिंग जो है बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डेकोरेटिव पर्पस के लिए प्रोड्यूस करना है, तो आप 3D प्रिंटिंग, वहां पे टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज होती है। लेकिन आप फंक्शनल या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर कोई पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, सो देयर यू विल कॉल इट एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली 3D प्रिंटिंग जो होता है, इट्स अ कस्टमर फोकस, okay, while additive manufacturing, it is what, it's an industrial focus. Okay, so hope with this video it is clear how rapid prototyping, 3D printing and additive manufacturing are different from each other. So to conclude, let me remind you, rapid prototyping, it is one of many applications under 3D printing and additive manufacturing. And how 3D printing and additive manufacturing differs. So basically 3D printing, it is a customer focused, while additive manufacturing, it is industrial focused. So hope with this it is clear how these processes are different from each other. Please do like and share my video with your friends so that they will also get benefited with it. And don't forget to hit the notification bell so that whenever I am uploading my next video, you will get a message of it. Till then, thank you, bye bye, and take care.